مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ دائیں طرف ایک خالی جگہ ہے، لوگ جگہ کے تلاش میں ہیں، ادھر جگہ خالی ہے، خالی جگہ کو پر کر لیا جائے۔ جیسے نماز کے اندر صفوں میں خالی جگہ ہوگی، شیطان آئے گا، نمازی کے نماز کو اچک لے گا، نمازی یہاں کھڑا ہے، دل دماغ غائب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی دعوت اللہ جو سارے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت، اس کی مجلس میں اگر جگہ خالی ہوں گی تو شیطان تو یہاں اور آ جائے، اس لیے ہماری کوشش ہو خالی جگہ کو پر کرنے۔ ہو جائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله إليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول اللهم لا نحصي ثناء عليك اللهم لا نحصي ثناء عليك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي بعدد من صلى عليه وصل على محمد النبي بعدد من لم يصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ويقول الله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ويقول الله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول الله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويقول الله سبحانه حقا علينا ننجي المؤمنين وقال حقا علينا نصر المؤمنين ويقول الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية ويقول الله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ويقول الله سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ويقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام
إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا في سبيل الله في القريب والبعيد يذهب الله به الهم والغم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کے ہر ذرہ، ہر فرد، ہر شے کے بنانے والے ایک اکیلے اللہ. بنانے والا کون؟ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. اللہ پاک کا اعلان ہے، سنو ہر چیز کا بنانے والا بالواسطہ بلا واسطہ ایک اکیلا اللہ. وهو الواحد القہار، وہ ایسا واحد ہے ثانی سے پاک. القہار، کائنات کی ذرہ ذرہ اس کے قہر تلے دبی ہوئی ہے. ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک اس کے قہر تلے دبا ہوا ہے. قطرے سے لے کر ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ اللہ کے قہر تلے دبے ہوئے ہیں. چونٹی اور دیمک جیسی جاندار، چھوٹی جاندار سے لے کر ملائکت عظام تک سب اللہ کے قہر تلے دبے ہوئے. بنانے والے کون؟ ایک اکیلے اللہ. اللہ بنانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب بنے ہوئے ہیں. اللہ کے علاوہ سب بنے ہوئے. اور بنانے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ. یہ آسمان یہ بنی ہوئی ہے، یہ زمین یہ بنی ہوئی ہے، یہ آگ پانی ہوا، یہ درند یہ چرند، یہ نباتات یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب بنے ہوئے ہیں. میں اور آپ ہم بھی بنے ہوئے ہیں. انبیاء علیہ السلام وہ بھی بنے ہوئے ہیں. ملائکت اعظام فرشتے وہ بھی بنے ہوئے ہیں. سب بنے ہوئے ہیں. ایک اکیلا اللہ بنانے والا، سب بنے ہوئے. عرش سے لے کر فرش تک سب بنے ہوئے. اور بنانے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ. بنی ہوئی ہر آن ہر لمحے بنانے والے کی محتاج ہے. بنی ہوئی ہر آن ہر لمحے بنانے والے کی محتاج ہے. بغیر بنانے والے کے اشارے کے، ارادے کے یہ بنی ہوئی حرکت نہیں کر سکتی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان نرالی ہے. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. یہ مائک، یہ لائٹ، یہ سب بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے ہم کمزور انسانوں کو استعمال کیا اس کے بنانے میں. جب یہ انسان جو کمزور ہے، محتاج ہے، عیبدار ہے، اس کے ذریعے اللہ نے کچھ چیزیں بنائی تو بغیر اس کے ہاتھ لگائے حرکت کی یہ جیسی ویسی کھڑی رہی. یہ روشنی دے رہی ایسی، رات دن اسے چھوڑ دے، بنانے والا ہاتھ نہ لگائے تو، اس کا اشارہ نہ ہو تو یہ ویسے ہی لٹکتی رہے گی، چلتی رہے گی. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، پوری کائنات اسے دل کے کاغذ کے اندر لکھنا ہے. جیسے پتھر میں لکیر بناتے ہیں، دل کے گہرائی میں اتارنا ہے کہ ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک یہ بنی ہوئی ہے. ذرہ بھی اللہ کا محتاج، یہ پہاڑ بھی اللہ کا محتاج. قطرے سے لے کر سمندر تک یہ اللہ کے محتاج. قطرہ بھی اللہ کا محتاج، سمندر بھی اللہ کے محتاج. ایسا نہیں کہ سمندر بڑی مخلوق ہے، وہ زیادہ محتاج ہے، قطرہ
छोटी मखलूक थोड़ा मोहताज, ये सब के सब मेरे रब के बराबर के मोहताज हैं। ऐसा नहीं कि समंदर थोड़ा मोहताज है, पहाड़ थोड़ा मोहताज है, ऐसा नहीं है। जर्रा जर्रा ये सब के सब मेरे रब के मोहताज है। सब पर मेरे रब की चलती है और मेरे रब पर किसी की नहीं चलती। ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी का कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। आप कहेंगे हैं ये जमीन मेरी है, ये बिल्डिंग मेरे है, ये प्लाटें मेरी हैं। सच बोलो, दिल में हाथ रख के बताओ आपके हैं। हम कह तो रहे हैं लेकिन अंदर ठंडे दिल से सोच लें, अगर कहते हैं मेरे हैं, अगर मैं कहता हूं मेरा हूं, मेरा है, तो सवाल किया जा रहा, बताओ हजरत इंसान, जब इस धरती में आप उतरे थे क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? क्या लेके आए थे? अच्छा हजरत इंसान, जब इस दुनिया से आप जाएंगे धरती से, क्या लेके जाएंगे? तो जब आप कहे तो आप लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? जब आप कह रहे हैं ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये बाड़ी, ये बंगला, ये कोठा है मेरा है, तो लेके जाइए साथ, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? पता चला हम सच नहीं बोल रहे थे। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ फरमा दे। ये हमारी नहीं है, ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ने मुझे और आपको थोड़े दिन के लिए दिया था, हम उस पर कब्जा कर लिए, छोड़ने को तैयार नहीं। सही है बात, समझ में आ रही है? एक बात अर्ज की जा रही है, दिल के कागज में लिखना है इसे, जैसे पत्थर में लिख देते मिटता नहीं, ऐसे ही दिल के अंदर ऐसा लिखना है कि ये पूरी कायनात बनी हुई है, बनाने वाला कौन? एक अकेला अल्लाह। अब सुनो, ये बनी हुई कैसी हो, बनाने वाला कैसा? वहुम युखलकून वला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। ये सब बने हुए हैं। कौन सब? अल्लाह के अलावा सब बने हुए। वो फरिश्तों की शक्ल में हो, वो अंबिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में हो, वो सालिहीन की शक्ल में हो, बुजुर्गान दीन की शक्ल हो, पहाड़ पर्वत की शक्ल हो, आग पानी हवा की शक्ल हो, दरिंद परिंद चंद की शक्ल हो, ये सब क्या है? बने हुए हैं। वो ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अ, बनी हुई ये मोहताज है। बनी हुई क्या है? बनी हुई किसकी मोहताज? बनी हुई बनाने वाले की मोहताज। जरा ध्यान देना, दिल दिमाग को लगाना है। अल्लाह करे मेरा और आपका दिल अल्लाह के गैर से पाक हो जाए। किससे पाक हो जाए? अभी अल्लाह हमसे नाराज है, सच्ची बात पूछो तो नाराज है। आप कहोगे भी नमाज पढ़ के उठे हैं, बेशक नमाज पढ़ के उठे हैं। अल्लाह कहते हैं दो रंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मम हो जा या सब हो जा। तूने दिल में मेरे गैर को भर दिया है, मुंह से कहते हैं अल्लाह अल्लाह, तेरा दिल कहता है गैरुल्लाह, तो मुंह से कहते हैं अल्लाह और दिल कहता है गैरुल्लाह। इसलिए बात हमारे रब की बैठ नहीं रही है। सही बोलो, हमारा दिल क्या कहता है? मैं कुछ नहीं मांगता है, क्यों? मैं तो हूं। नहीं नहीं, ला इलाहा, ये ला एक तलवार है जो अर्श से चलेगा, काटते काटते मुझे और आपको सबको काटते हुए सातों जमीन के तह तक सबको काटता जाएगा कि ला इलाहा, किसी में कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। किसका है? इल्लल्लाह, एक अकेले अल्लाह का है, उसी के अम्र से है, उसी का है, उसी के अम्र से है, उसी के अम्र में सब कुछ है। अल्लाह के अलावा सब बने हुए हैं। बने हुए ये मोहताज हैं। बने हुए कैसे हैं? मोहताज। बने हुए भिखारी। मालेगांव वाले ये कौन मौलवी कि हमको भिखारी कह दिया, हम तो सेठ साहब हैं। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे। सुनो, मेरा रब कहता है सारी इंसानियत को ललकार कर, ए हुकूमत वालों, ए मुल्क वालों, ए माल वालों, ए ताकत वालों, ए टेक्नोलॉजी
समझ में आ गई किसके दर के भिखारी हैं? रब के। वल्लाहु हुवल गनी अल हमीद, वो अल्लाह हमारा गनी है, हमीद है, तमाम तारीफें एक अकेले अल्लाह के लिए है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, जो बेटा रखने से पाक, लम यलिद व लम यूलद, बाप बनने से पाक, बेटा बनने से पाक, लम तकुल लहू साहिबा, शरीक हयात रखने से पाक, ला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मिस्र लहू वला मसीर लहू, वज़ीर रखने से पाक, मुशीर रखने से पाक, उसकी तरह कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। हुवल अव्वलु फलैसा क़ब्लहु शै व ऐसा अव्वल इब्तिदा से पाक, हुवल आखिरु फलैसा बअदहु शै व ऐसा आखिर इंतहा से पाक, हुवल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़हु शै व ऐसा ज़ाहिर उससे ऊपर कोई नहीं, हुवल बातिनु फलैसा दूनहु शै व ऐसा बातिन उससे नीचे कोई नहीं, उससे तहत, उससे ज्यादा तह तक की खबर जानने वाला कोई नहीं। अव्वल भी वही, आखिर भी वही, जाहिर भी वही, बातिन भी वही, कि बाकी कौन, कि बाकी कोई कुछ नहीं, वो एक अकेला है, बाकी सब सिफर है। ए बेटा, बाकी सब क्या है? जीरो जीरो, बाकी सब क्या है? अल्लाह के मां सिवा सब जीरो है, एक अकेला अल्लाह है। अगर सारे सिफर को मैंने और आपने जमा कर लिया, सिफर की कोई कीमत नहीं है। अगर एक को निकाल दिया जाए, है कोई कीमत? अब बुजुर्ग दोस्तों, एक को लगा दो सिफर के साथ, उस सिफर की कीमत बन गई। एक के बाद दो सिफर लगा दो, सिफर की कीमत बन गई। जितना जोड़ते जाओगे उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। अगर एक को हटा दो तो सब जीरो है। एक अकेला अल्लाह मेरा रब है, उसका अमर हट जाए आसमानों से, आसमान फट जाए। इधर समाउन शक़्क़त, एक दिन आएगा जब मेरा रब अपना अमर हटाएगा, आसमान फट जाएगा। इधर शम्सु कुव्विरत, एक दिन आएगा जब मेरा रब अपना अमर हटाएगा, सूरज बेनूर हो जाएगा। व इधर नुजूम इंकदरत, एक दिन आएगा जब मेरे रब का अमर होगा, मेरे रब का ऑर्डर होगा। इसराफील अलैहिस्सलाम को मेरा रब हुक्म देगा, वो सूर फूकेंगे, सितारे झड़-झड़ के गिरने शुरू हो जाएंगे। व इधर नुजूम इंकदरत व इधर जिबाल सुय्यरत, जब मेरे रब का अमर हट जाएगा, ये पहाड़ जो अपने जगह पर अटल है, ये भी रुई के गाने की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो तकूनुल जिबाल कलहिनिल मनफूश, उस रोज तुम देखोगे जब मेरे रब का अमर हट जाएगा, जब मेरे रब जब इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा, वो सुर फूकेंगे, ये पहाड़ रुई के गाने की तरह उड़ने शुरू होंगे। एक बात अर्ज की जा रही थी, ओ अल्लाह के वलियों, दिल दिमाग लगाकर मोहताज बनकर सुनना है। इस पूरी कायनात के हर जर्रा, हर शे, हर फर्द का बनाने वाला कौन? खाली अल्लाह नहीं, एक अकेला अल्लाह। अल्लाह बनाने वाले, उसके अलावा सब बनी हुई है। जो कुछ है, जो कुछ कह सकते हो, सब बनी हुई है। एक अकेला अल्लाह बनाने वाला। बनी हुई ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़ा, क्या मतलब? बनी हुई मोहताज है, कमजोर है, बनाने वाले के इरादे के बगैर कुछ नहीं कर सकती। बनी हुई में कुदरत नहीं है, कुदरत बनाने वाले के ज़ात में है। कुदरत कहाँ है? नफा नुकसान की कुदरत, इज्जत और जिल्लत देने की कुदरत, मौत और हयात देने की कुदरत, बीमारी और सेहत देने की कुदरत, ये किसके हाथ में है? ये किसके कब्जे में है? जरा बोलो तो सही, मानेगा वालों, अल्लाह वालों, किसके हाथ में है? एक अकेले अल्लाह के हाथ में है। वहुम युखलकून, मेरा रब कह रहा है ये सब बने हुए हैं, अर्श से लेकर फर्श तक, कदर से लेकर समंदर तक, ये सब बने हुए हैं। वो तुम्हें जो जो शक्ल नजर आ रही है, सब सिफर है, सब बने हुए हैं, इनमें कोई कुदरत नहीं है। मेरे रब के इरादे के बगैर किसी से कुछ नहीं होगा। ये पूरी कायनात उस अकेले अल्लाह ने बनाई है, बगैर किसी मददगार के बनाई है, बगैर किसी के शिरकत के बनाई है, बगैर रॉ मेटेरियल के बनाई है, बगैर नमूने के बनाई है, अपने अमरे कुन से बनाया है। मेरे रब ने बनाया, कैसा बनाया? कैसा बनाया?
समझना, दिल दिमाग लगाओ, ताकि दिल मेरा और आपका दिल पाक हो जाए, अल्लाह के गैर का तासुर निकल जाए। आज इस जमीन में सारी नाफरमानियां इसलिए हैं, मेरे और आपका दिल अल्लाह के गैर से मुतासिर है। अल्लाह के गैर का तासुर ये नाफरमानी कराने पर मजबूर कर देता है। और अल्लाह के गैर के तासुर दिल से क्यों नहीं निकल रहा है? बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने मुझे और आपको एक मेहनत अता फरमाई थी। अल्लाह ने मुझे और आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से एक मेहनत अता फरमाई थी। मैंने और आपने वो मेहनत छोड़ दी, वो मेहनत को उम्मत भूल गई। वो मेहनत इस उम्मत का तमग़े इम्तियाज, वो मेहनत की वजह से खुदा की गैबी मददें उतरती थी। मैंने और आपने जब उस मेहनत को छोड़ दिया, उस मेहनत को पीठ के पीछे डाल दिया, उस मेहनत को भूल गए। बुजुर्ग दोस्तों, हमारा दिल अल्लाह के गैर से भर गया, गैबी मददें उठ गई। कायनात जो हमारे लिए मुसख्खर थी वो हमारे खिलाफ हो गई। इसलिए एक बात अर्ज की जा रही है, जरा तवज्जो दो, तवज्जो के साथ बात सुनना है, अल्लाह कबूल फरमाए। ये पूरी कायनात बनी हुई है, कुदरत किसी में न नफा की कुदरत, न नुकसान की कुदरत, न इज्जत देने की कुदरत, न जलील करने की कुदरत, न मौत और हयात की कुदरत, न बीमारी सेहत देने की कुदरत। कुदरत कहाँ है? एक अल्लाह की जात में है। वअन्नहु हुवा अज़हका व अबका वअन्नहु हुवा अमाता व अहया वअन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़करा व उन्सा। सुनो, वही हंसाता है, वही रुलाता है। मालदारी और तंगदस्ती उसी की तरफ से है, जिसके लिए वो जितना लिख दिया है उससे ज्यादा एक दाना नहीं मिलेगा। कुल इन्ना रब्बी यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कह दीजिए मेरा रब है जिसके लिए चाहता है रोजी को बढ़ा देता है, जिसके लिए कम कर देता है। वह अल्लाहुल ग़ुयूब है, वो पूरी कायनात को बनाने वाला है, जर्रा जर्रा का खबर उसके पास है। वो जिसके लिए बढ़ाना मुनासिब समझता है बढ़ाता है, और जिसके लिए बढ़ाना मुनासिब नहीं, जिसके लिए घटाना मुनासिब है घटाना उसके लिए घटाता है। उतार चढ़ाव कौन करता है? अल्लाह करते हैं। कौन करता है? अल्लाह करते हैं। मेरे रब ने इस पूरी कायनात को बनाया, अपनी कुदरत से बनाया। कैसा बनाया? रॉ मटेरियल के बगैर बनाया। अब जरा गौर करना, सारी दुनिया की इंसानियत को कहो, सारी दुनिया के टेक्नोलॉजी वाले से कहो, सारी दुनिया जो सबसे कहो कि तुम कोई सामान बगैर मादे खाम के रॉ मटेरियल के बना दो, बना देंगे? बना देंगे? नहीं बना सकते। कि हाँ, मेरा रब वो है जिसने अपना नाम अल्लाह रखा है। इन्ननी अनल्लाह, वही अल्लाह है। ला इलाहा इल्ला अना, मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं। इल्ला अना फाबुदनी, ऐ सारे दुनिया के इंसानों, पेशानी रगड़ो मेरे सामने, हाथ फैलाओ मेरे सामने, जी लगाओ मुझसे। रब कैसा बनाने वाला? सारी दुनिया की इंसानियत से कहो बगैर मेटेरियल के बना दो, बना देंगे? बगैर नमूना के बना दो, बना देंगे? वो मेरा रब है कि वो कैसा बना रहा है। इतना बड़ा निजाम, ये जमीन जो बिछाई मेरे रब ने, इसका कोई मादे खाम नहीं था, रॉ मटेरियल के बगैर। अल्लाह अकबर, कैसा बनाने वाला रब। कोई रॉ मटेरियल नहीं समझ में आ रही है? रॉ मटेरियल समझते हैं तो मादे खाम कि जिसको मिलाकर चीजें बनाई जाती हैं। ये जमीन, ये आसमान, ये पहाड़, ये चांद, ये सितारे, ये सारा निजाम जो नजर आ रहा है मेरे रब ने अपनी कुदरत से बनाया। कैसा बनाया? बगैर रॉ मटेरियल के। और कैसा बनाया? नमूने के बगैर। इसलिए मेरे रब का एक नाम है खालिक, कि सबको बनाने वाला। एक नाम है बारी, कि वो बनाने वाला है। कैसा बनाने वाला? बगैर मादे खाम के। मेरे रब का एक नाम है बदी, बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहु वलद व लम तकुन लहु साहिबा। मेरे रब का एक नाम क्या है? कि वो बदी है। वो क्या है? कि बगैर नमूने के बनाने वाला, बगैर मटेरियल के बनाने वाला, बगैर मटेरियल के और बगैर नमूने के। कि मटेरियल भी नहीं और न, ऐसा नहीं कि आसमान का कोई नमूना था मेरे रब ने देखकर बना दिया हो। कि नहीं नहीं, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। लम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क। इस पूरी कायनात के बनाने में
چلانے میں، باقی رکھنے میں، ختم کرنے میں میرا رب شرکت سے پاک، اس کے بنانے میں را میٹریل سے پاک، اس کے بنانے میں نمونے سے پاک۔ قدرت میرے رب کی ذات میں ہے۔ قدرت کہاں ہے؟ قدرت کہاں ہے؟ ارے بولو تو صحیح اللہ والو، ہمارے منہ سے اللہ نہیں نکلتا، کیا بات ہے جی؟ اللہ منہ سے جتنا اللہ بولیں گے دل کی گندگی دور ہوگی، زمین آسمان کے درمیان جو گندگیاں ہیں یہ چھٹیں گی۔ میں نے اور آپ نے اللہ کا تذکرہ چھوڑ دیا، اس لیے غیر اللہ کے جالے بڑھ گئے ہیں۔ ہاں جب میں اور آپ ایک رب کا چرچا کریں گے، ایک رب کا تذکرہ کریں گے، بزرگوں دوستو یہ سارے جالے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سارے جالے اس لیے ہیں، جب مکان گھر بنانے والا اللہ کے گھر بنا دیا، بنا کے تالا ڈال کے چھوڑ دیا، ایک مدت کے بعد آئے گا تو مکڑی نے جالا تن دیا ہے، مکڑی کہہ رہا ہے کہ میں ایک گھر میرا ہے، جدھر مکڑی کیا کہ جدھر چاہ رہے جالا تان رہے ہو، جو مرضی کر رہے ہو، اس کا ہے کہ دھوکے میں ہاں گھر والا آئے گا، ایک جھاڑو لگائے گا، سب کو باہر ختم۔ بزرگ دوستو آج دنیا کے اندر مکڑی کے جالے بہت ہو گئے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، اور میں اور آپ بھی سن کے متاثر ہو گئے۔ بزرگ دوستو وجہ یہ ہے میں نے اور آپ نے اللہ کا چرچا نہ کیا، ایک اللہ کی توحید کو میں نے اور آپ نے نہ بولی کہ اس دھرتی میں اوپر نیچے کوئی ایسا میرے رب کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قدرت میرے رب کی ذات میں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس کے لیے چاہے کر گزرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، قدرت اس کی ذات میں ہے۔ وہ ارادہ کر لے سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر دے، وہ ارادہ نہ کرے سب کچھ کے ہوتے ہوئے کچھ نہ ہو سکے۔ اس نے ارادہ کیا آپ کو باغ بنا کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس نے ارادہ کیا باغ کو آگ بنا کر دکھایا اصحاب الجنہ کے لیے، سورۃ القلم میں 29 پارے کے اندر واقعہ ہے۔ اس نے ارادہ کیا یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کر کے دکھایا، جگہ کیسی ہے موت کی، قدرت اس کی ذات میں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے جس کے لیے چاہے کر گزرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قدرت کہاں ہے؟ ارے بولو تو صحیح، ارے اللہ تو بول دو، اللہ کی ذات میں قدرت کہاں ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے کسی غیر میں کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ کے غیر میں کوئی قدرت نہیں ہے۔ ہاں آپ کہیں گے جب قدرت نہیں ہے تو سورج سے تو روزانہ روشنی نکل رہی ہے، یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ جی ہاں یہ روشنی یہ سورج دونوں مخلوق ہے، دونوں پر میرے رب کا قبضہ ہے۔ سورج روشنی دینے میں رب کی محتاج ہے، میرا رب روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں۔ میرے رب قبر میں مومن کے قبر کو روشن کیا جائے گا، کوئی روشنی وہاں نہیں ہے، جنت روشن ہوگا، کوئی الیکٹرک وہاں نہیں، کوئی روشنی کے اسباب نہیں، اور جنت روشن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، فرعون کو حکم دیا فرعون کو جا کے دعوت دو، کہا اس سے کہ تو غلام ہے میرے رب کا، تو میرے رب کا بندہ ہے، جھک جا رب کے سامنے، سب کچھ چھوڑ رب کی طرف چل، پیشانی اس کے سامنے رگڑ، ہاتھ اس کے سامنے پھیلا، دل اس کو دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجا چاہو دعوت دو گے، اللہ نے انہیں ایک معجزہ دیا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جا کے اسے دعوت دیں گے، جب آپ کے نبوت کا انکار کرے گا تو آپ کہیں گے دیکھو میں اللہ کا سچا نبی ہوں، دیکھو یہ میرے پاس نشانی ہے، ہاتھ کو بغل میں ڈال کے نکالیے تو وہ کیسا نکلے گا؟ جیسے سورج روشن۔ تو قدرت اللہ کی ذات میں ہے، میرے رب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو روشن کر دیا، کوئی الیکٹرک نہیں، کوئی بیٹری نہیں، کوئی سولار نہیں، کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ، کسی کا کچھ نہیں، کسی میں کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی سے ہے، اسی کے امر میں ہے۔ قدرت کہاں ہے؟ اللہ کی ذات میں، نفع نقصان دینے کی قدرت، عزت ذلت دینے کی قدرت، بیماری اور صحت دینے کی قدرت، موت اور حیات دینے کی قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ وہ بڑی قدرت والے،
कुरान में अल्लाह ने वाक़यात बयान किए हैं। मेरे और आपके ज़िम्मा है, मैं और आप बहुत मोहताज हैं। ईमानी हल्के लगा लगा कर रोज़ाना मस्जिदों में, घरों में, कारोबारों में, बाजारों में, हर जगह ईमानी हल्के लगा लगा कर अल्लाह की कुदरत का चर्चा करें, अल्लाह की तौहीद का चर्चा करें, आखिरत की जिंदगी का चर्चा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में कामयाबी है, पूरे दीन में कामयाबी है, ये चर्चा करें। बुजुर्ग दोस्तों, मैं और आप बहुत मोहताज हैं। जब ईमान की दावत देना छोड़ देंगे, ईमानी हल्का लगाना छोड़ देंगे, बुजुर्ग दोस्तों, मेरा और आपका दिल शिर्क से भर जाएगा, मेरे और आपकी जिंदगियां रस्म रिवाज से बन जाएंगी, मेरे और आपका दिल दुनिया की मोहब्बत से भर जाएगा। जब हमारे दिल के अंदर शिर्क की जड़ें पैदा होंगी, जब हमारी जिंदगियों में रस्म रिवाज आएगा, जब हमारे दिल नापाक दुनिया की मोहब्बत से भर जाएंगे, खुदा की निगाह से हम गिर जाएंगे। चाहे 10 लाख 1 करोड़ रोजाना बैतुल्लाह का तवाफ करें, अगर मेरा और आपका दिल इसके अंदर शिर्क की जड़ें रही, नापाक दुनिया की मोहब्बत रही, जिंदगियों में रस्म रिवाज रहे, अल्लाह की निगाह रहमत ना हो। बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए मैं और आप बहुत मोहताज हैं। किस बात के मोहताज? अल्लाह का चर्चा करना। किसका चर्चा करना? हम लोग सब का चर्चा कर रहे हैं, रब का चर्चा नहीं। दिल में हाथ रख के कहो, सुबह से शाम कितनी मर्तबा रब को बोलते हो? कितनी मर्तबा रब को, कितनी मर्तबा सबको? सुबह से शाम कितनी मर्तबा आखिरत को, कितनी मर्तबा दुनिया को? सुबह से शाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों को कितना कहते हैं? नहीं। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह अकबर, ये ईमान की बुनियाद है। अल्लाह की ज़ात आली, अल्लाह को उसकी ज़ात और सिफात में वाहिद करार देना, उसकी कुदरत और ताकत के यकीन को दिल में पैदा करना, आखिरत के यकीन को पैदा करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में ताकत सातों ज़मीन आसमान से ज़्यादा है। इस यकीन को दिल में पैदा करना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, क़यामत तक कोई नबी नहीं है, ज़र्रा ज़र्रा के नबी है, अव्वलीन आखिरीन के नबी है, क़यामत तक के नबी है, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। इस यकीन को दिल में उतारना पड़ेगा, इस यकीन को दिल में उतारना पड़ेगा। दिल में कैसे उतारेंगे? दिल में कैसे उतारेंगे? मेहनत है। क्या है? एक मेहनत। इस मेहनत को क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने उस मेहनत का नाम रख दिया जमात वाले। इस वजह से मेहनत नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 बुजुर्ग दोस्तों, जिसे मरना है उसे करना है। जिसे मरना है, जिसे मरना है, क्या करना है? कि दावत की मेहनत करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली मेहनत करनी है। जो यूं कह दे इस मजमे में मुझे मरना नहीं है, तो उसको हम कुछ करने के लिए कहेंगे ही नहीं। कोई है ना इस धरती में, इस मजमे में नहीं, मशरिक मगरिब शिमाल जनूब में, जो यूं कह दे मैं मरूंगा नहीं? है कोई? अरे है कोई कह देगा? नहीं। जब आप इनकार नहीं कर सकते, मजबूर होकर आपको मौत की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, इबरत की जा है तमाशा नहीं। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, फील तन के दुख को पछाड़ा मौत ने। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मैयत कब्र में उतरनी है जरूर। एक दिन मैयत कहाँ उतरनी है? कब्र में। सोचते जाओ दिल दिमाग लगाकर। मैं भी सोचूं, आप भी सोचो, ये सब होना है। एक दिन मैयत कब्र में उतरनी है जरूर। जैसी करनी वैसी बननी है जरूर। जन्नत भी है, जहन्नम भी है। न माने करके देख, न माने तो आंख बंद करके मर जा, पता चले। बुजुर्ग दोस्तों, एक बात अर्ज की जा रही है कि पूरी कायनात बनी हुई है, बनाने वाले कौन? एक अकेले अल्लाह। वो कैसे हैं? पाक हैं, कवी हैं, कादिर हैं, ताकत वाले हैं। पूरी कायनात की जर्रा जर्रा उनके कब्जे में है। वो जब चाहे, जो चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस तरह चाहे कर गुजरे। कोई रुकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे रब ने कायनात को बनाया है। ये कायनात अल्लाह के ज़ाब्ते के तहत चलती है। थोड़ा दिल दिमाग लगाना है। ये कायनात कैसे चलती है? अंधाधुन नहीं, नहीं, ऐसा नहीं मेरे रब ने जमीन आसमान बना के किराए में दे दिया हो, हरगिज़ नहीं।
लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, सातों जमीन आसमान के मालिक वही है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सातों आसमान, सातों जमीन, वमा बैनहुमा वमा तहत सरा, उनके दरमियान, उनके ऊपर, सब के मालिक कौन है? कौन है? एक अकेला अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में सवाल किया, कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, ऐ सारे दुनिया के इंसानों जरा जवाब दो, मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, वो कौन है जिसके कब्जे में जर्रे से पहाड़ तक जिसके कब्जे में है, खतरे से समंदर तक किसके कब्जे में है, चोटी से लेकर बुनाई के निजाम तक किसके कब्जे में है, अर्श से लेकर फर्श तक जिसके कब्जे में है, वो कौन है? वो कौन है? अल्लाह। फिर अल्लाह खुद जवाब देते हैं, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन। वो बात, ये पूरी कायनात का मालिक वो पाक ज़ात है। कैसा पाक? ऐबों से पाक, शक्लों से पाक, मददगार से पाक, सब पाक, उसकी पाकी की इंतहा नहीं। व इलैहि तुरजऊन, तुम सबको लौट कर उसके पास जाना है। बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने कायनात को बनाया है। ये कायनात अल्लाह के ज़ाब्ते के तहत चल रही है। कैसे चल रही है? अब समझना है, अल्लाह के ज़ाब्तों के बगैर इस कायनात में एक दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं करता। वइन्नहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। दरख्त का एक पत्ता नहीं हरकत करता मगर मेरे रब के इल्म में है, उसके इरादे के बगैर। तो समझना है, अल्लाह के ज़ाब्तों को समझना है। आज बुजुर्ग दोस्तों, मेरी और आपकी निगाह अल्लाह के ज़ाब्तों से हट गई, अल्लाह के ज़ाब्तों को हम भूल गए, उसके खिलाफ जी रहे, इसलिए कायनात में हालात और हम सबको मलामत कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसी को मलामत मत करो। अल्लाह के मेहनत करके अल्लाह के ज़ाब्तों को जिंदा करो, अल्लाह के ज़ाब्तों पर आ जाओ। अल्लाह इस कायनात को तुम्हारा गुलाम बना देगा। तुम्हारे गुलामी भी जब तक रहोगे, इज्जत की जिंदगी जियोगे, ये जमीन आसमान के दरमियान का माहौल पाकीज़ा बन जाएगा, अमन अमान वाला बन जाएगा, अदल इंसाफ वाला बन जाएगा, शर्म और हया वाला बन जाएगा। शर्त ये है, बनाने वाले रब के ज़ाब्ते को दुनिया में जिंदा करो। अल्लाह ने हमें भेजा था इस दुनिया में अल्लाह के ज़ाब्तों को जिंदा करने के लिए। मुझसे और आपसे गलती हो गई, चूक हो गई, हम अल्लाह के ज़ाब्ते को पीठ के पीछे डाल दिए, बाहर फेंक दिए और खाने कमाने में गाड़ी बाड़ी बंगला मकान कोठा इसी में लग गए। इसलिए हम पर हालात सारी दुनिया में आ गए। तो अल्लाह के ज़ाब्तों को समझना है। किसे समझना है? जरा दिल दिमाग लगाए तवज्जो के साथ। एक ज़ाब्ता अल्लाह का समझना है कि ये कायनात जो मेरे रब ने अपनी कुदरत से बनाई है, ये कायनात का निजाम कब तक चलता रहेगा? ऐसा क्या ज़ाब्ता है? ये कायनात को बाकी रखने का अल्लाह का ज़ाब्ता वो मोमिन और ईमान है। क्या है? अल्लाह वालो मोमिन, अल्लाह कौन करो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको दी, ईमान की। लेकिन हमारे दिलों से ईमान का कीमती नेमत होना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे माल आ जाए खिलाओ, जितनी खुशी, कोई कहे ईमान इतनी बड़ी दौलत, उतनी खुशी होती है। हाँ दोस्तों, हमसे चूक हो गई। क्यों? कि मैंने और आपने ईमान पर मेहनत छोड़ दिया, सामान पर मेहनत शुरू कर दी, सामान की कीमत आ गई, ईमान की कीमत निकल गई। सामान बेकीमत, हम सामान से जुड़े, रब की निगाह में हम बेकीमत हो गए। हम माल के पीछे पड़ गए, अमाल को छोड़ दिए। ये माल मैल है। माल क्या है? माल मैल है। माल क्या है? आज आपके यहाँ, कल उसके वहां, परसों उसके वहां। हम माल के पीछे पड़ गए, अमाल को छोड़ दिए और आपकी निगाह से बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए ध्यान देना, कायनात के बाकी रखने का ज़ाब्ता अल्लाह का क्या है? मोमिन और ईमान। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान अता फरमाई है। तो पता चला, घबराने की बात नहीं। सारी दुनिया कुछ कहे, सारी दुनिया कहे, करे तुम सारी दुनिया कुछ भी आवाज लगाए। बुजुर्ग दोस्तों, ये कायनात मोमिन की वजह से है। सब चाह रहे कि सारे ईमान वालों को खत्म कर दे। कि बुजुर्ग दोस्तों, घबराओ मत, सबकी आवाज सुनकर। अगर इस धरती में मोमिन न रहेगा तो तुम कहाँ रह जाओगे? कायनात ही नजर लपेट देगा।
मेरा रब कायनात को लपेट देगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यक़ूल रजुलुन अल्लाह अल्लाह। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक इस धरती में एक भी मोमिन होगा। पता चला कि कायनात का बाकी रहना, कायनात का निजाम का चलना किसकी वजह से है? और सोने वालों, किसकी वजह से है? जी गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं जी, पावर रूम चलाते चलाते सो जाते हैं, हैंडलूम चला सो जाते हैं, और अल्लाह की बात सुनते सुनते क्यों सो जाते हैं? मुतवज्जे रहो, क्या बात की जा रही है? कैसी अजीम नेमत अल्लाह ने दी है मुझे और आपको, ईमान, पूरी कायनात जिसकी वजह से बाकी है, चल रहा है। ये अल्लाह का ज़ात है, अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसलिए मुझे और आपको ईमान पर मेहनत करनी पड़ेगी। किस पर मेहनत करनी पड़ेगी? हमसे चूक हो गई, हम सामान की तरफ चले गए, अल्लाह हमारे कसूर को माफ फरमाए, हमें ईमान पर मेहनत की तौफीक अता फरमाए। एक बात अर्ज की जा रही है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, अल्लाह ने कुछ ज़ाब्ते बनाए हैं। ज़ाब्ता कहते हैं जब से दुनिया बनी है क़यामत तक उसमें चेंजिंग नहीं, तब्दीली नहीं। ज़माना बदल जाए, सफ़न बदल जाए, लोग बदल जाए, उसमें तब्दीली नहीं। अब आपके सामने चंद ज़ाब्ते अर्ज किए जाते हैं। अल्लाह का ज़ाब्ता एक तो अर्ज की कि कायनात कब तक चलती रहेगी? जब तक मोमिन है। इसलिए सारी दुनिया कुछ भी कहे, किसी का असर मत लो कि अल्लाह ने अपने फजल से मुझे और आपको बड़ी नेमत दी है। जब तक इस धरती में ईमान वाले हैं कायनात रहेगी, मोमिन खत्म, कायनात खत्म। जी हाँ। अब अगली बात, अल्लाह ने कायनात को बनाया, एक ज़ाब्ता बनाया है। सारी दुनिया की इंसानियत मजबूर है उस ज़ाब्ते को मानने पर। वो क्या है? जो इस धरती में आया है उसे यहाँ से जाना है। जो यहाँ आया है जी, जो यहाँ आया है उसे यहाँ से, उस जाने का नाम क्या है? कौन से सवारी में सवार होंगे? मलिकुल मौत। मलिकुल मौत आएंगे, वो सवार करके ले जाएंगे। मौत की सवारी है, मलिकुल मौत चलाने वाले हैं उस सवारी के। अल्लाह ने तय कर दिया है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। आज तक इस धरती में न कोई पैदा हुआ, न क़यामत तक कोई पैदा होगा जो इनकार कर दे, जो यूं कह दे कि मौत गलत है। है कोई? है कोई इनकार कर देगा? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अटल फैसला। जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, कैसे भाषा, अपने आप को कुछ कहला रहा हो। सुनो, प्यारे हबीब साहब तशरीफ फरमा है मस्जिद में, सहाबा बैठे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर यूं फरमाया, यूं अर्ज किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश माशिर फइन्नका मय्यितुन व हबीब माशिर फइन्नका मुफारिकुन व अमल माशिर फइन्नका मुजज़ियुन व अमल माशिर फइन्नका मुजज़ियुन व अलम अन्न शरफल मोमिन फी क़ियामिल लैल। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, आप सुनिए, जितना मर्जी दुनिया में रहिए, आप कहेंगे तो आपको और उम्र दे देगा, लेकिन एक बात सुनिए, यहाँ से जाना है, मौत की सवारी में सवार होना है। मैं और आप क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे? कुरान कह रहा है, नस्से कतई है, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। आप भी जाने वाले हैं, ये सब जाने वाले हैं, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। अल्लाह का एक ज़ाब्ता है, जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है। और अल्लाह वालों, जो सो रहे हैं जगा दो प्यार मोहब्बत से, नुकसान हो जाएगा उनका भी, सबका। तो अल्लाह का पहला ज़ाब्ता क्या हो गया? जो इस दुनिया में आया उसे, बहुत है लेकिन चंद ज़रूरी बातें अर्ज करनी, अल्लाह मुझे और आपको समझा दे, हम तौबा करके अपने ज़िंदगियों के बदलने के फैसले करके यहाँ से उठें। अल्लाह का एक ज़ाब्ता है, जो इस दुनिया में आया उसे दुनिया से पूछो, दुनिया में कोई है जो इनकार कर देगा? है कोई? नहीं इनकार कर सकता। अगली बात, जो एक मर्तबा दुनिया से चला गया वापसी नहीं है। जो एक मर्तबा दुनिया से चला गया, यहाँ वापसी, तवज्जो की जरूरत है, बहुत तवज्जो है। यहाँ बैठने का नाम तवज्जो नहीं, दिल दिमाग यहाँ लगाओ।
दिल दिमाग हमारा घूमता ही नजर नहीं, मुतवज्जे रहो, बात बनेगी नहीं। बचपन से 55 सुनते रहेंगे, जिंदगी बदलेगी नहीं अगर दिल दिमाग की ताकत नहीं लगाते। इस जमाने में बड़ा नुकसान हो रहा है, हम लोग दिल दिमाग की ताकत नहीं लगाते, इसलिए गोश्त का लोथा बदलता नहीं। दिल न बदला तो हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, खुदा का फैसला कभी भी बदलेगा नहीं। एक मेहनत अपनी जिंदगियों को बदलने की है, अगर यही गाफिल रहे तो मेहनत के मैदान में कहां से हमें पहुंचाएगा। जरा मुतवज्जे रहो, एक बात अर्ज की जा रही है, पहला ज़ाब्ता अल्लाह का जो इस दुनिया में आया है उसे यहाँ से जाना, पक्की बात, कोई शक तो नहीं, शक है कि रहो या नहीं, पक्की बात। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर ज़ीरो को मौत का मजा चखा है। इतना ही नहीं, अल्लाह का रवैया बदल, अंदाज बदल कर कह रहे हैं, क़ुल इन्नल मौता अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अरे तुम मौत से भाग रहे हो, मौत का तज़किरा सुनना पसंद नहीं करते। क़ुल इन्नल मौता अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, और मौत दौड़ कर तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हारे गर्दन को दबोच डालेगी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में पूरी कायनात है, वो बड़ी कुदरत वाला है जिसने मौत और हयात को बनाया। पहले हयात नहीं कहा, ख़लक़ल हयात वल मौत, पहले क्या कहा, ख़लक़ल मौत वल हयात, क्या कहा, मुतवज्जे रहो, खलक़ल मौत वल हयात, हयात वल मौत नहीं कहा कि हमने जो जिंदगी दी है मौत की तैयारी के लिए। जिंदगी काहे के लिए अल्लाह ने दी है, हम क्या कर रहे हैं, हम जीने की तैयारी में लगे हैं, दूर दूर तक मौत का तज़किरा भी नहीं है। जब इस धरती में ईमान वालों की निगाहें मौत से हटेगी, आखिरत की जिंदगी से हटेगी, उन पर दुर्घटनाएं घटेंगी, कदम कदम में हम पर दुर्घटनाएं इसलिए घट रही है, मेरी और आपकी निगाह, हम चेहरा मोहरा तो बना लिए, थोड़ा बहुत अमाल कर लिए, लेकिन दिल का बर्तन आखिरत की फिक्र से खाली है, मौत को भूले हुए हैं। किसी का जनाजा देख लिए, दो आंसू बहा दिए, दफन करके आके फिर भूल गए, फिर मस्त हो गए जैसे मरना ही नहीं है। गलत है जी, हाँ, मेरा रब कह रहा खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिंदगी दी है मौत की तैयारी के लिए। हमसे कितनी बड़ी चूक हो गई, सारे हालात हम पर इसलिए है कि हम जिस काम के लिए रब ने भेजा था उस काम से क्या हो गए, मुंडिया हिलाने लगे, भूल गए, हट गए। क्या मौत की तैयारी, मौत का तज़किरा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अक्सिरू मिन ज़िक्री हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद करो। लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से हम कितना याद करते हैं, सुबह शाम याद करते हैं नहीं, इसलिए तौबा करें, तय करें कि इंशाअल्लाह मौत का तज़किरा करेंगे। रोजाना ईमानी हल्के लगाकर अल्लाह की तौहीद का तज़किरा करना, आखिरत का तज़किरा करना, मौत का तज़किरा करना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में इज्जत है, ये तज़किरा करना, इसका नाम दावत है। दावत कोई पहाड़ है नहीं कि दब जाएगा उसके तले, मारे घबरा के छोड़ दिए दावत को। तो बुजुर्ग दोस्तों, एक बात अर्ज की जा रही है, मेरे रब ने कायनात को बनाया है, ये कायनात रब के ज़ाब्ते के तहत चल रही है। एक ज़ाब्ता है जो इस दुनिया में आया, इसे यहाँ से जाना है। दूसरा, जो एक मर्तबा चला गया उसे दोबारा वापसी नहीं है। वापसी है, वापसी नहीं है। कोई भी हो कसे बाशर, मेरे रब ने लिख दिया है, इसके खिलाफ कभी नहीं होगा। ओ अल्लाह के वली, ओ अल्लाह के वली, इसके खिलाफ कभी नहीं होगा। जो एक बार चला गया, मलिकुल मौत के मुंह में मलिकुल मौत आ गए, उसे ले गए, दोबारा वापसी नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कुरान ने एक बात कही है, अगर मैं और आप यूं गफलत के साथ जिंदगी गुजारते रहे, कोई आखिरत की फिक्र नहीं, कोई दर्द नहीं, यूं पड़े रहे बस खाए पिए एक रूटीन बनाकर। बुजुर्ग दोस्तों, मेरा रब कह रहा है, कुरान कह रहा है, जब मलिकुल मौत आएंगे तो ये तमन्ना करेगा, हत्ता इज़ा जाअहुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊन, काहे की तमन्ना करेगा, लौटा दीजिए। क्यों लौटा दीजिए? लअल्ली अअमलु सालिहा, कि मैं जिंदगी बर्बाद करके आ गया, ख्वाहिशात में चीजों के पीछे लगा रहा, सामान के पीछे लगा रहा, माल के पीछे लगा रहा,
ईमान अमल से गाफिल रहा, सबके पीछे पड़ा रहा, रब को छोड़ा रहा, रस्म रिवाज में पड़ा रहा, सुन्नत को छोड़ा रहा, दुनिया में जी लगा बैठा रहा, कब्र को भूला रहा, हशर को भूला रहा, पुलसरात को भूला रहा, जन्नत जहन्नम को भूला रहा। अल्लाह मुझसे गलती हो गई, जब वो मलकुल मौत को देखेगा ऐसे खतरनाक फरिश्ते अल्लाहु अकबर जिनके करीब नरमी जिनके करीब नहीं गई है, कितने बड़े होंगे वो। अल्लाहु अकबर। और मेरा रब कितना बड़ा है, जिसने मलकुल मौत को कितना बड़ा बनाया। पूरी दुनिया की सारे जानदार उनके सामने जैसे 5 उंगली, वो कितने बड़े होंगे कि पूरी दुनिया इतनी छोटी उनके सामने। कि भाई अल्लाह ने सबका लिस्ट दे दिया है किसको किसके रूह को कब निकालना है, बिल्कुल पूरी दुनिया उनके सामने है। अल्लाहु अकबर। तो जब मलकुल मौत आएंगे, अल्लाहु अकबर, ये तमन्ना कहेगा रब्बि इरजिऊन, अल्लाह लौटा दे, अल्लाह लौटा दे। क्यों लौटा दे? कि जिंदगी बर्बाद कर दिया, गफलत में, ख्वाहिशात में, रस्म रिवाज में, सबके चक्कर में, रब को भूलकर लौटा दीजिए। अब समझ में बात आ गई। मुझे यकीन नहीं था कि मर गया, मैं समझता था मर गया, मिट्टी हो गया, छुट्टी हो गई। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा निजाम है अभी, या जन्नत है या दहकती हुई आग है। ओहो, क्या रब्बि इरजिऊन, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लौटा दीजिए। लअल्ली अअमलु सालिहा, तौबा करता हूँ, जिंदगी को बना कर आऊंगा। कुरान ने अंदाज इख्तियार किया, जोर से डाला जाएगा, कल्ला, चुप, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। बकवास कर रहा है। हमने जिंदगी दी थी, हमने कुरान उतारा, नबियों को भेजा, नबी की विरासत में लोग दर बदर फिरते रहे, खुशामतें करते रहे, मस्जिदें बुलाते रहे, हल्कों की तरफ बुलाते रहे, खुशामत करते रहे, आओ तौबा कर लो। तो यूं कहता था, अरे जाओ ना, कौन मरा है कौन दिखा है। अब समझ में आई, अब ये समझ में आएगी, तमन्ना करेगा लौटा दो। मेरा रब नकल कर रहा है, मेरा रब जिसने मुझे और आपको 3-3 अंधेरी कोठरी में रखकर बनाया है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, वो रब कह रहा है कि अगर तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, ईमान न सीखा, कुरान न सीखा, दीन न सीखा, सुन्नतों पर न चले और रब की इताअत न की, तो तुम रोओगे खून के आंसू, तमन्ना करोगे, लेकिन उसे तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि यबअसून। क्या होगा कि डांट दिया जाएगा और कहा जाएगा डाल दो इसे बरज़ख के अजाब में। इसे कहा डाल दो, बरज़ख के अजाब में डाल दो। अल्लाहु अकबर। अम्मी जान आयशा फरमाती हैं, अम्मी जान आयशा फरमाती हैं कि जानते हो बरज़ख का अजाब क्या है? कि जब ये जिंदगी बर्बाद करके गया, इसके कब्र में 2 सांप मुसल्लत कर दी जाएंगे, एक सर की तरफ से एक पैर की तरफ से, दोनों काटते काटते आकर दोनों बीच में मिलेंगे। फिर पूरे बदन को ऐसा कर दिया जाएगा अल्लाह के अमर से, फिर काटना शुरू करेंगे। फरमाती है वो इतना खतरनाक सांप होगा, अगर एक फनकार जमीन में मार दे क़यामत तक घास ना होगी। अल्लाहु अकबर। बुजुर्ग दोस्तों, एक बात अर्ज की जा रही है, अल्लाह ने ज़ाब्ता बनाया, जो एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। हाँ, वापस की तमन्ना करेगा कौन? जिसने जिंदगी ज़ाय कर दी। तो क्या ख्याल है वो अल्लाह के वलियों जिंदगी को ज़ाय करेंगे? और अल्लाह के वलियों, इसलिए हम सब तौबा करें, तौबा करें। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, फिक्र कितनों को पछाड़ा मौत ने। एक दिन मरना है, मौत से मफर नहीं है, जाना पड़ेगा, जाना भी है और आना भी नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, अपने नफ्स को कुचल दे। ये नफ्स अंदर अल्लाह ने हमारे इम्तिहान के लिए पैदा किया है, हमारे अंदर एक चाहत है, ये जी नहीं चाहता फजर की नमाज में उठने को तैयार नहीं, ये जी सजदा करने को तैयार नहीं, ये जी सुन्नत पर चलने को तैयार नहीं। इसे क्या करो, इसे मोड़ डालो, इसे कुचल डालो, अल्लाह की इताअत पर मजबूर करो, वरना यही नफ्स कहाँ ले जाएगा, पिटवा देगा, गले में डलवा देगा। एक बात अर्ज की जा रही है, अल्लाह का ज़ाब्ता है, जाना भी है और
आना भी नहीं है। दो बातें। तीसरी बात, मैं और आप जिन चीजों पर मेहनत कर रहे हैं इसमें से मैं और आप जिन चीजों पर मेहनत कर रहे हैं इनमें से बुजुर्ग दोस्तों एक तिनका जाने वाला नहीं है। जाएगा जरा ठंडे दिल से। और मेरे प्यारों बुजुर्गों और अल्लाह वालों, जरा ठंडे दिल से इसको कान तक न रखो। एक हकीकत है, सोचे जरा दिल लगाकर, जरा सोचो बुजुर्ग दोस्तों, थोड़ा ठंडे दिल से सोचो। मैं और आप जिन चीजों में लगे हुए हैं, ये गाड़ी, ये बाड़ी, ये बंगला, ये कोठा, ये मकान, रातों दिन लगे हुए हैं, सच बताओ एक जरा साथ जाएगा? रह जाएगा अल्लाह वालों? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा ये बंजारा। कुछ नहीं जाएगा, जाना भी है आना भी नहीं। और कोई चीजें जिन पर हम मेहनत कर रहे हैं जाएगा नहीं। क्या कुछ तो जाएगा। क्या जाएगा कि अंदर का ईमान जाएगा, सामान बाहर का रह जाएगा, अमल का ताल्लुक बदन से अमल अंदर का जाएगा, माल बाहर का रह जाएगा। अब दिल पर हाथ लगा के बताओ मेरे प्यारों, मेरे बुजुर्गों, जो चीजें जाएंगी, जो ईमान, जो अमल, मैं और आप ईमान अमल की कितनी फिक्र कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे बोलो, इसके लिए आज तौबा करें, मैं भी और आप भी। अल्लाह हमारी तौबा है, ये इज्तिमा तौबा करने की जगह, अपनी जिंदगियों को बदलने के आज़म, अब उस मेहनत को करना, ईमान अमल की मेहनत को करना है, ताकि ये ईमान अमल साथ जाने वाला है। तो दोस्तों एक बात अर्ज की गई, अल्लाह का ज़ाब्ता है, जाना भी है और आना भी नहीं है, और कुछ जाएगा नहीं। क्या जाएगा कि ईमान और अमल जाएगा। ईमान का ताल्लुक अंदर से हो जाएगा, अमल का ताल्लुक बदन के पुर्जे से ये जाएगा, सामान और माल ये बाहर का है, ये रह जाएगा। तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? हम जिन चीजों में लगे हैं ये तो जाएगा नहीं, और वहां जो जाएगा छोड़े हुए हैं, क्या करना पड़ेगा? तौबा करके ईमान और अमल की फिक्र करनी है। बुजुर्ग दोस्तों जरा ठंडे दिल से सोचो जरा, एक वक्त आएगा मुझ पर, आप पर, सब पर अल्लाह हक है, मुझे और आपको बाहरी कमरे में लिटा दिया जाएगा। सारी चीजें पुरानी होंगी, जब आसार जाहिर होंगे ये हजरत अब जाने वाले हैं दुनिया से, ये दुनिया से जाने वाले हैं। अब पुरानी चिटाई, पुरानी चादर बाहरी कमरे में डाल दिया जाएगा, रिश्तेदार आएंगे। उस मंजर को सोचो जरा दिल से बुजुर्गों दोस्तों। अल्लाह करे मेरा दिल और आपका दिल नरम पड़ जाए, कुछ आंसू टपक जाए, दिल रो पड़े, खुदा को तरस आ जाए। आएंगे रिश्तेदार, आंसू बहाकर चले जाएंगे। देखते देखते अब दुखाते ही पैर को हाथ मारते हैं, मरते नहीं क्या? हाँ, अब पैर हाथ ठंडे होने शुरू हो गए, अभी मेहमान चलने वाला है। देखते देखते पैर हाथ ठंडे हो गए, कनपटी बैठ गई, नाक टेढ़ा हो गया, ये पक्की अलामतें हैं कि हजरत जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब सारे सहारे छूटेंगे, टिकटिकी बांध कर देख रहा है क्या जाएगा साथ में। और अल्लाह के वलियों क्या जाएगा, और अल्लाह के वलियों क्या जाएगा? माल जाएगा। ये गाड़ी बाड़ी बंगले कोठे जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या जाएगा? ईमान। और क्या जाएगा? अमल। तब उखड़ गया, ऐलान हो गया, मस्जिद में फलां का इंतकाल हो गया। ये सब होना है, सोचो। हकीकत हक है, मैंने और आपने सोचना छोड़ दिया, ईमान कमजोर हो गया। मैंने और आपने दावत देनी छोड़ दी, सुननी छोड़ दी, गौर फिक्र करना छोड़ दिया, ईमान कमजोर हो गया। सामान की मोहब्बत बढ़ गई, माल की मोहब्बत बढ़ गई, ईमान की मोहब्बत घट गई, अमाल जिंदगी से निकल गई, हालात बिगड़ गए। बुजुर्ग दोस्तों गौर करो, ऐलान हो गया, फलां का इंतकाल हो गया। अब भगदड़ मच गई, कुछ लोग खबर खोदने गए, कुछ लोग कफन काटने में लग गए, कफन लाने में, कुछ लोग पानी गर्म करने में चले गए। पानी गर्म करने के लिए चले, कितना गर्म पानी करो गाय के लिए, तो अल्लाह के ऊपर
করছে